ایک ہائی اسٹینڈرڈ اینڈ کلاسی وومن کیا ہوتی ہے؟ کلاسی is a word used to describe people, places and things. Being classy and elegant means having respect for yourself and others. A high standard woman known as classy woman. ایک کلاسی وومن ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم بزنس وومن ہوں یا ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوگا تب ہی ہم اپنی لک کو کلاسی کر سکیں گے. ہم اپنے بجٹ میں رہ کر اپنی پرسنالٹی کو کلاسی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہی ہیبٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. آئی ہوپ آپ کے لیے یوزفل رہیں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج کا ولاگ میں صبح نماز فجر کے فوراً بعد سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور جو کچھ یہاں کرتی جاؤں گی ساتھ ہی ساتھ لکھتی جاؤں گی اور ساتھ ہی ایک بہت ہی زبردست ٹاپک پر بھی بات کریں گے. آج کے ولاگ کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ہمارے کرسچن بہن بھائی کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے ہیپی کرسمس. ہم یہاں ان کنٹریز میں ملٹی ریلیجنس اینڈ ملٹی کلچر کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سب بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ہم سب اپنے ریلیجیس تہواروں کو بہت ادب و احترام سے اور مل جل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی موٹیویشنل ہیبٹس اور کچھ ایسے پوائنٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی اپنے چینل پر شیئر نہ کیے ہوں گے. آج کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جن پر غور تو کی جاتی ہے لیکن ان باتوں کو اگنور بھی کیا جاتا ہے. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہ کریں اور ان پر غور کریں تو یقین مانیے ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک بدل سکتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں 8 ہیبٹس ٹو بی اے کلاسی اینڈ ایلیگنٹ وومن. سب سے پہلی ہیبٹ، اے کلاسی وومن آلویز سیٹ گولز اینڈ ورک آن دیم. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے اور جو کرنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے سوچ کر ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اچانک سے اپنی زندگی کے کوئی بھی کام سٹارٹ نہیں کرتی ہیں. میں نے اپنے پہلے بھی ولاگز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لائف میں گولز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے سال میں کیا کام کرنا ہے تو آپ بہت حد تک زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. A classy woman makes time for herself. چاہے وہ کتنی بھی بیزی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے لیے وقت ضرور نکالتی ہیں. وہ ہمیشہ سیلف کیئر کرتی ہیں. کبھی اگر اچانک سے گھر سے باہر جانا پڑے تو ان کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آتی کہ میں نے تو پلکنگ ہی نہیں کی، مجھے ہیئر ڈائی کرنے تھے، یا مجھے گھر سے باہر جانا ہے تو میری ہیلز پھٹی ہیں، شوز کون سے پہننے ہیں، میں ڈریس کون سا چوز کروں. یہ سبھی سوچوں سے وہ بہت دور ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے لیے وقت نکال کر اپنے لیے پورے ویک کی پہلے سے ہی تیاری کر لیتی ہیں. اس لیے اگر آپ اپنی لک کو کلاسی اینڈ ایلیگنٹ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے لیے وقت ضرور نکالا کریں. A classy woman is smart with her personal finance. وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. چاہے وہ گھر پر رہتی ہیں، چاہے وہ فل ٹائم ہاؤس وائف ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی مثال میں اپنی دادی اور نانی کے ٹائم کی جنریشن کی دوں گی. دیکھیے اس ٹائم کی خواتین گھر کے بھی کام کرتی تھیں، بچے بھی سنبھالتی تھیں، کوئی مشینیں بھی نہیں تھیں، ہاؤس ہیلپ بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور جانور بھی رکھے ہوتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ گھر کو بھی اچھے سے مینیج کرتی تھیں، بچوں کو بھی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھیں اور گھر کے کام کبھی بھی ان کے لیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. اور وہ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. ان کے پاس نہ تو بینک بیلنس تھے اور نہ ہی کہیں پر انہوں نے کچھ ایسی انویسٹمنٹ کی ہوتی تھی جس سے ان کو منتھلی انکم آتی رہے. وہ اپنی محنت سے گھر پر رہ کر وہ اپنے لیے ارننگ کرتی تھی. کچھ خواتین گھر پر رہ کر کپڑے سلائی کرتی تھیں تو کچھ نیٹنگ کیا کرتی تھی، کچھ کڑھائی سکھایا کرتی تھیں اور کچھ کروشیا کیا کرتی تھیں. جن خواتین کے پاس اینیملز تھے وہ ملک سیل کرتی تھیں یا بٹر گھی وغیرہ بنا کر سیل کرتی تھیں. اور یہ سبھی باتیں میں نے خود سے بھی دیکھی ہیں کیونکہ میری نانی اور دادی ان میں سے بہت سارے کام کیا کرتی تھیں. اور یہ سبھی باتیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کی ایجوکیٹڈ وومن کیوں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی. آپ بھی اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بنا سکتی ہیں. گھر پر رہ کر کوئی ایسا کام کیجیے جس سے آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکیں.
A classy woman always stay organized. अपने आप के साथ वो अपने घर को, अपने अराउंड जो भी इन्वायरमेंट होती है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखती है। अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आएं। सुबह जल्दी उठें, अपने घर के कामों को वक्त से करें और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर रखें। हम अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। और घर में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो इस्तेमाल नहीं होता है, उसे साथ ही साथ डिक्लटर करते रहा करें। आप डोनेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सेल हो सकता है तो अभी इतने सारे ऐप्स हैं, उन पर आप सेल कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल प्राइस स्टफ़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो आराम से आपकी चीज़ों को बाय कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ जो आपके घर में पड़ी है और इस्तेमाल नहीं हो रही, टूट गई है, ख़राब हो गई है, किसी के इस्तेमाल की नहीं है, तो उसे फेंक दिया करें। ये सब छोटी छोटी हैबिट्स ऐसी हैं जिनसे आपके अराउंड सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। A classy woman always trust in her self-discipline. ऐसी ख़वातीन अपने घर के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इतने डिसिप्लिन से रहती हैं कि उन्हें कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। चाहे वो किचन का काम हो, बच्चों का काम हो, घर का हो या बाहर का, सभी कामों को बहुत डिसिप्लिन से करती हैं। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़े से डिसिप्लिन में ले आएँ तो बिलीव मी, हमारी लाइफ बहुत हद तक आसान हो सकती है। जो बहनें सुबह जल्दी नहीं जागती हैं, सिर्फ एक वीक के लिए आप अपने आप को चैलेंज कीजिए और सिर्फ एक वीक यानी 7 डेज तक आप अपने आप को सुबह जल्दी उठने की आदी बनाइए। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके कितने सारे काम आपने कंप्लीट भी किए हैं, आपका अपने लिए भी वक्त निकला है। और ये जो सर्दियों के छोटे छोटे दिन हैं और लंबी रातें और दिन फ़ौरन से गुजर जाता है, काम वहीं का वहीं रहता है। जब आप सुबह जल्दी जागेंगे तो आपके बहुत सारे काम आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा जिसमें आप सेल्फ केयर कर सकती हैं, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। अपनी सहूलतों के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना बहुत ज़रूरी है। An elegant woman don't ignore her health care. जो ख़वातीन अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं वो अपनी फैमिली की सेहत का अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बिलीव मी, आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा और ना ही कोई आके आपको कहेगा कि आप जंपर पहने, स्वेटर पहने या सॉक्स पहने, सर्दी है, सर्दी लग जाएगी। कोई भी आपसे नहीं कहेगा, इसलिए अपना ध्यान खुद से रखा करें। जब आप बीमार हो ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके लिए कोई भी स्पेशल फूड नहीं आएगा, आपके लिए कोई स्पेशल वाटर बॉटल या हीटर्स वगैरह नहीं आएंगे जो कि आपको वार्म करें। आपको खुद से उठकर अपनी सॉक्स भी लेना पड़ेगी। खाना अगर नहीं खाया तो सारी फैमिली आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने क्या खाना है, लेकिन कोई बनाकर आपके मुंह के आगे नहीं रखेगा। यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर आपके पास केयरिंग फैमिली है, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हैं, तो वो आपसे पूछ पूछ कर आपको इरिटेट करेंगे, जैसा कि मेरे साथ होता है। कभी अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे अगर कहवा बना कर देना है, तो मेरे फैमिली मेंबर्स बार बार आके पूछते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या ऐड करने हैं। कभी ये पूछते हैं कि कहवा में हनी ऐड करना है या शुगर ऐड करना है, और कभी ये कहेंगे कि कहवा में चाय की पत्ती ऐड करें या कॉफ़ी ऐड करें। अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे बार बार बतानी पड़ती हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही उठ के बना लूँ। ये भी रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो बेहतर है ना कि क्यों ना अपना ध्यान रख लिया जाए, और जब हम ध्यान रखेंगे, सेहतमंद होंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। A classy woman don't mess around. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी भी एक एलिगेंट एंड क्लासी वुमन अपने अराउंड मेस नहीं बनाती है। अगर उससे कोई बात करता है और उसे नागवार गुजरती है तो वो चुप कर जाती है। वो बहस नहीं करती, वो पहले अच्छे से सोचती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही बात करती है, लेकिन वो फसाद की सूरत में बात नहीं करती। वो आराम और तहम्मुल से बात करती है ताकि सामने वाले को अच्छे से समझा लिया जाए कि आगे से ऐसी बात करने का मौका ही ना मिले। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन के अराउंड अगर कोई मैस क्रिएट करता है तो वो उसे टोटली इग्नोर करती हैं और अपनी लाइफ पर वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं। वो अपनी लाइफ पर इतनी मेहनत करती हैं, इतना कॉन्सेंट्रेट किया होता है कि उनकी लाइफ सामने वाला देखते साथ ही पहचान जाता है कि वो एक क्लासी एंड एलिगेंट वुमन है। ना तो उनकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ होती हैं और ना ही ऐसे लोगों से वास्ता होता है जो उनकी लाइफ में मैस क्रिएट करें। ऐसी ख़वातीन हमेशा पीस ऑफ माइंड के साथ रहती हैं क्योंकि वो आगे पीछे यहाँ वहाँ की बातों पर गौर ही नहीं करती।
A classy woman always behave maturely and responsible. देखिए, हम आज की ख़वातीन हैं। अगर हम अच्छे मैनर्स को फॉलो करेंगे तो हम कल की जनरेशन को कुछ सिखा रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन जब हॉलीडेज जाती हैं, होटल बुक करती हैं और होटल रूम के अंदर जब वो रहती हैं तो रूम में प्रोवाइड की गई एक एक चीज़ जिसकी घर पर ज़रूरत भी नहीं होती वो अपने हैंड बैग में या बैग्स में रखकर घर तक ले आती हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर सेल लग गई है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान खाड़ी में ही सेल लगी है। देखिए, कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है कि औरतों ने आपस में कितनी लड़ाई की है। बस उस लड़ाई में घुस जाना और वहाँ से खींच कर चीज़ें लेना। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं खाने पर जाना तो अगर ये मालूम हो गया कि कोई और फ्रेंड आपका पे कर रहा है तो जितना आपने खाना खाना है उससे डबल ऑर्डर दे देना, ये देखते हुए कि कोई दूसरा ऑर्डर कर रहा है, क्यों ना जितना हो सके उतना मंगवा लिया जाए। ये बहुत चीप हरकतों में आता है। इसके अलावा एक जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो आपसे शेयर करूँगी। यहाँ यूके की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ माशाल्लाह हमारे जितने भी मैंने कोई फंक्शन अटेंड किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और मैनर्स से फॉलो किए जाते हैं। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले जब मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान गई तो वहाँ हमें एक शादी अटेंड करने का मौका मिला। उस वक्त हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ जब शादी हॉल में पहुंची तो वहाँ बहुत ही खूबसूरती से ख़वातीन तैयार हुई थीं। किसी ने साड़ी पहनी थी तो किसी ने लहंगा, किसी ने अनारकली पहना था तो किसी ने कमीज शलवार। देखने में बहुत ही खूबसूरत और उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक मुतासिर कर देने वाली लग रही थी। हम सब फैमिली मेम्बर्स बैठकर अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक से सभी ख़वातीन उठी और उठकर एक तरफ उन्होंने दौड़ ही लगा दी। क्या साड़ी, क्या लहंगा, क्या कमीज शलवार और क्या अनारकली। उन ख़वातीन को तो अपने बच्चों तक की परवाह नहीं थी। वो लोगों के ऊपर से फलांगती हुई, धक्का मुक्की करती हुई एक तरफ भागने लगी। ये सब मंजर देखते हुए मुझे एकदम से घबराहट होने लगी और मैं अपनी चेयर से उठ गई और मैंने अपनी नंद की तरफ देखा और मैंने कहा अल्लाह खैर करें कि ये सब यहाँ इस तरह से भाग रही हैं, हुआ क्या है। तो मेरी नंद ने कहा कि अभी जो थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी वो खाने की अनाउंसमेंट हुई थी कि खाना खुल गया है, ये औरतें वहाँ पर खाना लेने के लिए जा रही हैं। बिलीव मी, ये सारा मंजर देखकर मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा और कुछ ख़वातीन वहाँ से पूरी ट्रेज को उठाकर अपने टेबल पर रख रही थी। हालांकि वहाँ खाना सर्व करने के लिए बाकायदा वेटर्स को रखा गया था। इसके बावजूद वो ख़वातीन खुद अपने हाथों से खाना डाल रही थी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई थी कि कुछ देर पहले कुछ ख़वातीन जो मुझे मिलने के लिए हमारे टेबल तक आई थी, मेरी फैमिली के साथ खड़े होकर बहुत अच्छी बातें कर रही थी। उन ख़वातीन के ये मैनर्स देखकर दिल में बहुत दुख हुआ कि ये आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगी। हम जैसे लोग जो अब्रोड में रहते हैं, पाकिस्तान अपने बच्चों को इसलिए लेकर जाते हैं कि बच्चे वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की अच्छाई से मुतासिर होकर पाकिस्तान जाना पसंद करें ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे पाकिस्तान जाया करें। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग इस वक्त वहाँ के माहौल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उनका साथ भी कोई नहीं देता। लेकिन अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम दूसरे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप अच्छी बातें दूसरों से शेयर कीजिए, दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। आगे अगले की मर्जी, वो उसको फॉलो करे या ना करे, लेकिन आपकी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अपने आप को एक क्लासी एंड एलिगेंट वुमन बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम एक्सपेंसिव आउटफिट पहने, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, मेकअप, शूज वगैरह पहनेंगे या हर वक्त बने संवरे रहेंगे तो ही हमारी लुक क्लासी आएगी। हम अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके अपने आप को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। थोड़ी चेंजेस करने से ही इंसान बदलता है और जब इंसान बदलता है तो ही अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से जी सकता है। आज का व्लॉग मेरा यही तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।